Okay, assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's lecture, and as I told you before that today we are going to start off with paper 2. So let's start. Starting off with the very basic definition that is called algorithms. So when we talk about the algorithms are actually step by step instructions to perform a task. Whenever we want to perform any type of task, if we are performing that task step by step, then that is called algorithm beta. We are having two types of algorithms. One type is called the flowchart, and the other type is called pseudocodes. When we are talking about the pseudocodes, when we are talking about the flowcharts are actually pictorial representation of instructions. And when we talk about the pseudocodes, so pseudocodes are actually when we describe in statements, in description, then we call the algorithm as the pseudocode stuff. So from now onwards, we are standing in, I guess, end of October. तो till mid of December, जब तक हमारा paper 1 खत्म नहीं होता, so we will be carrying on these pseudocodes beta. Every Thursday, the class will be of pseudocodes. तो अब हम लोग pseudocodes करते रहेंगे till हमारा paper 1 end नहीं हो जाता, और जब हम लोग paper 2 start करेंगे, so हमारा half of the paper 2 will already be completed. पहले से ही complete होगा हमारे पास, because हम लोगों ने pseudocodes को parallel के अंदर पहले से ही complete कर लिया होगा. ठीक है. आप besides pseudocodes ऐसी कोई major चीज नहीं है हमारे पास paper 2 के अंदर बेटा. The major stuff in paper 2 is pseudocodes, और वो हम लोग ने अभी से start कर दिया है. तो हम लोग parallel के अंदर हल्के हल्के मजे में ये करते रहेंगे. In every Thursday we will be performing one of the statements. We will be solving multiple questions. I will be giving you few questions for the homework as well. So pseudocodes are the main stuff when we are talking about the paper 2. So paper 1 हम लोग Monday, Tuesday, Wednesday, and the Thursday we will be working on paper 2. So moving ahead, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और. Let's see. Now when we talk about the pseudocodes, आप लोगों को पहली बात जो पता होनी चाहिए, that is about data. If anyone asks you to define data, so data क्या होता है आपके पास? Actually data is raw
facts and figures. When we arrange those facts and figures, then it is converted into information. So information is a structured form of data. बिल्कुल. So अब इस डेटा एवरीथिंग इज डेटा क्लास. ये भी डेटा है, अगर मैं ये लिख रहा हूँ ये भी डेटा है, मेरे पास यहाँ पे कुछ पास पेपर्स हैं ये भी डेटा है. एवरीथिंग इज डेटा. सब चीजें आपके पास डेटा के अंदर आती हैं. ठीक है. एवरीथिंग इज काउंटेड इन डेटा. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा, सो इस डेटा की आपके पास कुछ टाइप्स भी होती हैं. स्टार्टिंग विद द डेटा टाइप्स, the first data type that comes is called, in pseudocodes, is called string. बहुत सारे बच्चों को क्लास पता होगा, लेकिन अगेन currently I am considering कि no one knows what is string, what is char, what is anything else. ठीक है. तो string is a collection of alpha numeric characters. Always represented in double inverted commas. Example, मैंने बोला name is equal to, let's say, Labiqur Rahman. So actually this Labiqur Rahman, the name is a string. मैंने बोला address is equal to so this address is also a string beta. You can see characters, you can see special characters, you can see numbers, you can see special characters. So string is a combination of everything. हर चीज आ जाती है आपके पास string के अंदर, but remember in double inverted commas. After string, the other data type class that is called, let's talk about integer. So integer क्या होता है आपके पास? Anyone? आप लोग भी इंटीजर्स, जिन बच्चों ने ओ लेवल पढ़ा हुआ है उनको याद ही होगा. तो कोई बच्चा मुझे बता दे इंटीजर्स क्या होते हैं. जुबैदा ने हमें आंसर कर दिया. एनीवन एल्स? आई थिंक पूरी क्लास को इस बात का जवाब देना चाहिए कि व्हाट आर एक्चुअली इंटीजर्स. ओह हैदर, एक्सीलेंट बेटा, जबरदस्त. ठीक है हसन. लबीक, परफेक्ट आंसर बेटा.
ठीक है. So integer are actually whole numbers, and whole numbers क्या होते हैं? Without fractional point. Example 1001 minus 100 88 minus 210. So whole numbers are called integers. When we talk about the fractional numbers, so fractional numbers are called real. तो फ्रैक्शनल नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? Decimal numbers as well, we call it. So these are your real numbers. Fractional numbers ko we call it real. So we have seen string, integer, real. One more data type that is called char. So char is a data type used to represent a single character. Used to represent a single character. Char is a data type. For example, a 2 at the rate of z. And remember one more thing. Represented in single inverted commas बेटा. So चार को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट चार इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास. Moving ahead, moving forward, another data type that is called Boolean. I hope you guys remember. So Boolean is when we have two conditions and the result is either true or false. So Boolean is a data type that contains the value that is true or false. So it is counted in the decision making. Whenever we want to make decisions, so we go for the Boolean stuff. There is one more data type that, although it is not directly part of syllable, but you should know about this as well. That is called the date. So used to store the date. The format of the date is DD, MM and class YY. तो मतलब बेटा करेंसी वाज इन ओ लेवल्स, और ओ लेवल्स के अंदर भी आपके पास एक टॉपिक था पर्टिकुलरली दैट वाज कॉल्ड डेटाबेस. तो वहां पे हम करेंसी वगैरह यूज करते थे, बट नॉट राइट नाउ, नॉट ओवर हियर. यहाँ पे हम यूज नहीं करते. ठीक है, दैट वाज ओ लेवल्स डेटाबेस. यहाँ पे
we are having a totally different database. So यहाँ पे अलग कहानी है. I hope I sound clear to you. So these are the few data types class that you should consider, that you should remember whenever when we are dealing with the pseudocodes. After this, here comes one more thing that you should know, that you should consider. This is called variables. So what are variables? Variables are the entities that change the value during the execution of code. For example, I was coding, मैं line number 1001 के ऊपर था. I declared a variable that is name and I set the value as Zubeda. Then I was coding, मैं code करते I was on line 2250. Over here, I changed the value of name to Heather. So before this line, the value of the name was Zubeda, but after this line, मैंने name की value change करके क्या कर दी? Heather कर दी. So variables are the entities that can change value during the execution of the code. अब सवाल असल ये आता है, there are certain rules for variable naming convention. So हमारे पास multiple rules होते हैं whenever we are deciding the name of the variables. Starting with the first rule, variable names should be meaningful. Example, मुझे नाम सेव करवाना था of हसन, so मैंने बोला name is equal to हसन. That's right. So name क्या चीज है हमारे पास, ये तो आप लोगों को पता ही है, वेरिएबल है. अब अगर मैं यहाँ पे ये काम कर दूं, मैं अगर ये काम कर देता, रोल is equal to Hassan, so that is wrong because my variable name is roll. तो यहाँ पे roll number ही सेव करवा दो, that is better instead of storing the name. So this is wrong. So variable names should be meaningful. Second rule, let's say मेरे पास सर ने बोला one of my student named as let's say रुबाब. तो रुबाब ने बोला कि भाई सर ने बोला है कि वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल. सो एक स्टूडेंट आया क्लास के अंदर, शी नेम एज स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू साद. ठीक है. So class, again this is wrong because of this. So
the rule is variable names cannot have spaces. ठीक है, so the correct model will be so वेरिएबल नेम्स के अंदर स्पेसेस हमारे पास नहीं आ सकती बेटा. आफ्टर द सेकंड रूल, द थर्ड रूल, द थर्ड रूल, हैदर आ गए अब सामने. हैदर ने बोला सर, हैदर ने सोचा कि यार देखो मैं एक तेज बच्चा हूं, सर ने बोला स्पेसेस नहीं आनी चाहिए तो मैं ये करता हूं. अब स्टूडेंट at the rate of name. So class, this is also wrong. This is also wrong because variable names cannot have spatial characters except underscore. So अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज करना ही है so you can use underscore, but I won't recommend, मैं recommend नहीं करूंगा कि आप लोग कोई ये स्टफ यूज करें, बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, they usually make a hash instead of underscore. They usually make a hash instead of the underscore, so it's a big mistake. So I would recommend कि बच्चे यूज ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है, या अंडरस्कोर वगैरह यूज ना करें तो ज्यादा बेहतर है बेटा आपके पास. ठीक है, मूविंग अहेड, मूविंग फॉरवर्ड. द फोर्थ रूल, दैट इज, अब हमजा आजमी के पास क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे आ गए, वो बड़ा खुश हुए. सो उन्होंने बोला कि जल्दी मैं इनका नाम सेव करता हूं, तो ही स्टार्टेड नेम सेविंग द नेम्स. वन स्टूडेंट, वन नेम इज इक्वल टू साद, टू नेम इज इक्वल टू रबील, थ्री नेम इज इक्वल टू Ibrahim. So class, again this is wrong. क्यों? Because variable names cannot be started with a number. The correct model, the correct version will be name 1, name 2, name 3. So this is the perfect correct model. The fifth rule, अच्छा जो फिफ्थ रूल है ये कंपलसरी रूल नहीं है, लेकिन अगेन एक मिस्टेक है. तो मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं तो ये सिली मिस्टेक, ये छोटी सी मिस्टेक भी ना करें आप लोग. माय स्टूडेंट शुड बी परफेक्ट इन एवरी सेंस. आप लोग जब सूडो कोड लिखें तो अलग से नजर आ जाए, सूडो कोड देखते ही नजर आ जाए यार ये मैक के स्टूडेंट्स हैं. तो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, ऑल्दो एग्जामिनर इग्नोर कर देता है इन मिस्टेक्स को, लेकिन आई वोंट,
मैं नहीं करूंगा क्लास इग्नोर, बिकॉज मैं चाहता हूं कि अगर एक रूल है तो वो रूल भी आप लोग को, छोटा सा रूल है तो वो रूल भी आप लोग को पता होना चाहिए। एंड इस रूल के ऊपर मैं आप लोग को ज्यादा फोकस रखूंगा, बिकॉज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वी विल बी वर्किंग ऑन विल बी पाइथन, एंड पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सो लेट्स सपोज आप लोग क्लास कोडिंग कर रहे थे, और कोडिंग करते करते आप लोग आ गए आप आगे कोड करते 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 आप नीचे पहुंचे और आपने ये कर दिया। सो यू कैन सी यहां पे द आर वॉज कैपिटल और ओवर हियर आपने लोअर केस यूज कर लिया। सो ये भी आप लोग क्या करो, अवॉइड करो। अगर ऊपर आर कैपिटल है तो नीचे भी सेम केस सेंसिटिव चीजें यूज करें बेटा, ठीक है। मूविंग अहेड, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अब। So these are the 5 rules for the variables. So we have seen the data types, we have seen the variable rules. Now it's time for the operators. So operators की जब बात करें तो for addition, plus, for subtraction, minus, for multiplication, asterisk, for division, forward slash. So these are the operators that you are going to use. Further, we are having some more operators like relational operators. So relational operators के अंदर क्लास जो कॉमन मिस्टेक्स है वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। greater than equals to, less than, equals to, not, equals to। तो क्लास जनरली बच्चे क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू को लिखते हैं ऐसे। सो दिस इज completely wrong. Now how you are going to write, this is how you are going to write greater than equal to beta. Similarly when we talk about less than equal to, so this is wrong. If you want to write less than equal to, less than equal to, जनरली जब आप लोग नॉट इक्वल टू की बात करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, this is the symbol for not equal to, again this is wrong. The correct model will be, this is the symbol for not equal to. So ये अभी छोटी छोटी बात है आप लोग को याद रखनी है। तो हमने ऑपरेटर्स की बात करी, रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करी। वी आर हैविंग वन मोर ऑपरेटर्स that are called logical operators. So when we talk about the logical operators, so and, or, not, so you can use these and or not as well. and के अंदर आपको पता है both conditions should match, और के अंदर either of the condition match. सो इस सारे ऑपरेटर्स के बारे में भी अब आप लोग को नॉलेज हो गई है। मूविंग अहेड, मूविंग फॉरवर्ड, वी टॉक अबाउट द
rules of the variables, we talked about the data types, we talked about the algorithms, we talked about the data, we talked about the operators that we are going to use. Now it's time for the statements. क्लास जिस तरह ओ लेवल्स के अंदर आपके पास 5 स्टेटमेंट्स थी, तो यहां पे भी एएस लेवल के अंदर भी यू आर हैविंग ओनली 5 स्टेटमेंट्स. लेकिन जाहिर सी बात है, द कैलिबर ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, द सूडो कोड्स आर फर्स्ट सूडो कोड बेटा. ठीक है. नाउ व्हेनेवर वी वांट टू परफॉर्म selections, like I requested मूसा, मैंने बोला मूसा बेटा जरा जाओ और जाके कैंटीन से मेरे लिए एक डेयरी मिल्क ले आओ. अगर डेयरी मिल्क ना हो तो बाउंटी ले आना, अगर बाउंटी ना हो तो मार्स ले आना, अगर मार्स ना हो तो स्नीकर्स ले आना. ठीक है. सो ये क्या था, ये एक सिलेक्शन था. तो मूसा जब कैंटीन जाएंगे, अगर उनको डेयरी मिल्क मिल गई तो डेयरी मिल्क लेके आ जाएंगे, बाकी सारे ऑप्शंस क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे. अगर उन्हें बाउंटी मिल गई, अगर डेयरी मिल्क ना हुई और बाउंटी मिल गई, देन ही विल बी लुकिंग फॉर द बाउंटी, अगर वो मिल गई एंड सो ऑन. तो क्या इस टाइप के स्टफ को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट सिलेक्शन. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेक्शन स्टफ, हमारे पास दो टाइप्स की सिलेक्शंस होती हैं. वन टाइप ऑफ सिलेक्शन इज कॉल्ड if, then, else, and if. This is one type of selection, and the other type of selection class is called case of otherwise and case. So we have two types of selections. अब सिलेक्शन क्या होती है, मैंने आप लोगों को ये भी लिखवा देता हूं ताकि आप लोग को आइडिया क्लियर रहे. Whenever we need to select between two or more ऑब्जेक्ट्स. तो जब भी आप लोग को दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के दरमियान सिलेक्शन करनी हो, सेलेक्ट करना हो, तो क्लास वी कॉल दैट सिलेक्शन. हमारे पास दो तरह की स्टेटमेंट्स हैं. वन स्टेटमेंट इज कॉल्ड केस ऑफ अदरवाइज एंड केस, एंड द अदर स्टेटमेंट क्लास इज कॉल्ड इफ देन एल्स एंड इफ. अब पेपर के अंदर आप लोग के पास टोटली आप लोग की चॉइस होती है, आप लोग को जो स्टेटमेंट यूज करना है यू कैन यूज दैट स्टेटमेंट, यू कैन यूज दैट स्टेटमेंट. आपका पेपर के अंदर इज टोटली योर चॉइस. लेकिन हम लोग प्रीफर क्या करते हैं, हम लोग प्रीफर करते हैं इफ देन एल्स को when condition is complex. So whenever the condition is complex, we always prefer if then else. अब सर ये कॉम्प्लेक्स कंडीशन क्या होती है, जरा बताएं हमें. अब ये कॉम्प्लेक्स कंडीशन क्लास ये होती है, फॉर एग्जांपल आई अगेन रिक्वेस्टेड मूसा कि मैंने बोला बेटा जाओ कैंटीन जाओ, और दिस टाइम अगर कैंटीन में डेयरी मिल्क हो और चिप्स के अंदर, चॉकलेट के अंदर डेयरी मिल्क हो एंड चिप्स के अंदर आपके पास लेट्स से कुरकुरे हो, तो मेरे लिए एक्वाफिना की बोतल ले आना. नाउ द कंडीशन लुक्स वियर्ड, बट अगेन इट्स अ कॉम्प्लेक्स कंडीशन बेटा. कैसे कॉम्प्लेक्स है
कि मैंने बोला अगर चॉकलेट अगर डेयरी मिल्क है, एंड अगर आपके पास चिप्स के अंदर क्या है, लेज हैं, सॉरी कुरकुरे बोला था मैंने, आई फॉरगॉट, ठीक है कुरकुरे हैं, तो मेरे लिए एक्वाफिना लेकर आ जाना। तो ये क्या अजीब सी कंडीशन है, एक अदद कॉम्प्लेक्स कंडीशन है। तो whenever the condition is complex we always prefer if then else बेटा। and when we prefer case of otherwise, when we have too many selections, तो वी प्रीफर क्लास केस ऑफ अदरवाइज। अब टू मेनी सिलेक्शन, मैंने बोला भाई जाओ जल्दी से कैंटीन जाओ, अगर कुरकुरे है तो कुरकुरे ले आना, अगर लेज है तो लेज ले आना, अगर प्रिंगल्स है तो प्रिंगल्स ले आना। और कोई नाम आप लोग बताएं, मैं मुझे तो चिप्स के नाम भी नहीं पता, मुझे ये दो तीन छोटे मोटे नाम पता है, तो कोई नाम के और बताएं मुझे जरा चिप्स के। कोई तो बता दे, एनी नेम। अयान, इजा, मूसा, एनी नेम बेटा, कोई भी अगर आप लोग मुझे यहाँ पे एक और चिप्स का नाम बताएं, यू गाइस आर विद मी और नॉट। तो मैंने बताया कि अगर कुरकुरे हैं तो कुरकुरे लेना, लेज, हाँ इजा ने क्लास में बता दिया, थैंक यू इजा। इजा इस सर डोरिटोज ले आना, ठीक है। मूसा ने भी हमें चले नाम बता दिया, मूसा इज सेइंग कि सर बेबी, ठीक है। सो जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो तो हम लोग किसको प्रीफर करते हैं, हम लोग केस ऑफ अदरवाइज को प्रेफर करते हैं। और अगर हमारी कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो तो हम लोग इफ देन एल्स को प्रेफर करते हैं। लेकिन बोथ कैन बी यूज्ड एनी टाइम, दोनों यूज किए जा सकते हैं एनी टाइम, लेकिन वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रेफरेंस, ठीक है। अब सिलेक्शन की बस आपके पास दो ही स्टेटमेंट है। आफ्टर द सिलेक्शन स्टेटमेंट आपके पास आती है द नेक्स्ट स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड लूप्स। लूप्स क्या होते हैं क्लास, whenever you need to perform a task again and again, एक टास्क अगर आप लोग को बार बार परफॉर्म करना हो तो वी कॉल इट लूप। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अयान बेटा आप, मैंने बोला अयान बेटा आप गोलकीपर बन जाओ, गोल पोस्ट सीधा कर देते हैं, टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो मैंने अयान को क्लास खड़ा कर दिया एज अ गोलकीपर, और मैंने रिक्वेस्ट करी मूसा आप प्लेंटी शूट आउट्स लो ऑन अयान। और कितने शूट आउट्स लेने आपने, आपने शूट आउट्स लेने 100। अब क्या होगा, मूसा बार बार आएंगे, प्लेंटी शूट आउट लेंगे फिर आ जाएंगे, फिर प्लेंटी शूट आउट लेंगे फिर आ जाएंगे, फिर लेंगे फिर आ जाएंगे। कब तक लेते रहेंगे प्लेंटी शूट आउट्स, 100 टाइम्स। तो मूसा इज परफॉर्मिंग वन टास्क रिपीटेडली, एक ही काम एक ही टास्क क्या कर रहे हैं वो बार 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 क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। So whenever we are performing a task repeatedly, we call that task as loops, or we call that task as loop, or anyone the other name of loops, we call that task as iterations as well। तो iteration या loops क्या होते हैं आपके पास, repetition of instructions, ठीक है। तो repetition of instructions is called loops। अब हमारे पास दो तरह के लूप्स होते हैं, वन लूप इज कॉल्ड conditional loops and the other loops are called unconditional loops। Now when we talk about
द अनकंडीशनल लूप्स, तो हमारे पास सिलेबस के अंदर सिर्फ एक ही अनकंडीशनल लूप है, एंड दैट अनकंडीशनल लूप इज कॉल्ड फॉर टू नेक्स्ट। तो दिस इज अ अनकंडीशनल लूप, और ये लूप कब प्रीफर किया जाता है? यूज्ड व्हेन number of iterations are known in advance। ठीक है, when the number of iterations are known in advance, आपको पता है कि 100 दफा चलाना है, 200 दफा चलाना है, 300 दफा चलाना है, 10 दफा चलाना है, 20 दफा चलाना है, अगर आपको पता है नंबर ऑफ आइट्रेशन इन एडवांस, तो वी प्रेफर फॉर टू नेक्स्ट बेटा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द अनकंडीशनल लूप, तो अनकंडीशनल लूप आपके सिलेबस के अंदर क्लास 2 है। एक कहलाता है precondition, and the next one is called post condition loop। why this loop is called, why precondition के अंदर आपके पास क्लास जो लूप आता है, that loop is called while do and while। ठीक है, तो आपका प्री कंडीशन में जो लूप आता है दैट इज कॉल्ड while do and while, और पोस्ट कंडीशन में जो लूप आता है आपके पास दैट लूप इज कॉल्ड repeat until। अब क्लास why it is called post condition loop, because first the loop runs, then condition is checked। अब ये क्लास कंडीशनल लूप्स क्या होते हैं? मैंने अगेन बोला जाओ मूसा फिर जाओ, अयान को गोलकीपर बनाओ, अब प्लेंटी शूट आउट लेते रहो, प्लेंटी शूट आउट लेते रहो, और हर प्लेंटी शूट आउट लेने के बाद चेक करना, हर प्लेंटी शूट आउट लेने के बाद चेक करना कि अगर मैंने, आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, अगर मैंने यहां पे एक ग्रीन फ्लैग ऊपर कर दिया है, तो तुम प्लेंटी शूट आउट मत लेना, छोड़ देना बस फिर। ठीक है, और अगर नहीं किया हुआ तो कीप टेकिंग द प्लेंटी शूट आउट्स। तो ये क्या था, एक काम बार बार मूसा रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ही इज डिपेंडिंग ऑन अ कंडीशन, एंड दैट कंडीशन इज डिफाइंड बाय मी। मैंने डिफाइन करी हुई एक कंडीशन। तो क्लास जब आप लोग कोई काम परफॉर्म करते रहे डिपेंडिंग ऑन अ कंडीशन, तो वी कॉल दैट वर्क एज अ कंडीशनल लूप। ठीक है, सो सिमिलरली पोस्ट कंडीशन क्या होता है, आपके पास आपका लूप चल जाता है, पहले चल जाएगा ये, और एंड में जाके कंडीशन चेक करता है। ठीक है, और प्री कंडीशन क्या होता है, पहले कंडीशन चेक करेगा और फिर क्या होगा, फिर चलेगा। प्री कंडीशन के अंदर कौन सा आता है आपका लूप, while do and while, और पोस्ट कंडीशन में कौन सा लूप आता है आपके पास, दैट इज कॉल्ड रिपीट until। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे और भी कुछ बातें लिखवाई आप लोग को अबाउट प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन लूप। एटलीस्ट
once this loop will run. ठीक है, एक दफा क्लास ये लूप आपके पास जरूर चलता है. एंड what else, this loop ends when the condition is true. तो जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो ये लूप क्या हो जाता है, एंड हो जाता है. ये एक दफा ये लूप क्लास जरूर चलता है, भले आपकी पहली कंडीशन ही क्यों ना ट्रू हो, ये लूप एक दफा क्लास जरूर चलता है. ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द व्हाइल लूप, तो सारी चीजें अपोजिट है. इसकी सारी चीजें क्या है, अपोजिट है. नंबर वन, फर्स्ट condition is checked, then we run the loop. ये लूप क्लास एंड कब होता है, लूप ends when condition is false. जब आपकी कंडीशन फॉल्स होती है लूप क्या हो जाता है आपका, एंड हो जाता है भाई. ठीक है. और क्या बताना इसके बारे में, बस दैट्स इट, दैट्स इट. तो क्लास यहाँ पे हमारे पास सारा थ्योरी वाला पार्ट क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास क्लास सारा थ्योरी वाला पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है. दिस इज द थ्योरी, दिस इज द बेसिक दैट यू शुड नो. एक दफा रिकॉल करते हैं, रिकैप करते हैं. एक दफा रिकैप देता हूं मैं आप लोगों को जरा. लेट मी पिक अ कलर. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट वी आर हैविंग 5. नंबर 1, फॉर टू नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है आपके पास. एक और स्टेटमेंट क्या है, दैट इज रिपीट अंटिल. एक और स्टेटमेंट क्या है, while do and while. एक और स्टेटमेंट क्या है आपके पास, case of, otherwise and case. And the last statement is if then else and if. बेटा, so total number of statements are only 5. बस इन 5 की 5 स्टेटमेंट्स के ऊपर क्लास कमांड हासिल कर लें, आपके सूडो कोड्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे. कोई आप लोग को डाउट नहीं होगा. अब सूडो कोड लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं. और सूडो कोड्स क्या, जब तक हम लोग कोडिंग स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप लोगों को प्रॉपर आइडिया नहीं आएगा, प्रॉपर कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर नहीं होगा. ठीक है. एक लास्ट चीज, एक चीज मैं भूल गया था करवाना आप लोगों को थ्योरी के अंदर, दैट इज ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं. आपके पास एक और ऑपरेटर होता है, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स. सो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं आपके पास, लाइक एंड, और, and not. So these are the logical operators that we can use while we are doing the coding stuff. तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आप लोग क्लास क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. ठीक है. और आई होप आप लोग को ये एंड और नॉट का डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दैट इन लॉजिक गेट्स. एंड दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, और कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. नॉट जो भी आपका रिजल्ट है उसका क्या कर देगा, ये अपोजिट कर देगा. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड, स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट कोड. स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट कोड,
and this code, let me write down the question. Let's say input three numbers and display their sum. तो बहुत आसान सवाल है, पहला सवाल है। ये सवाल करवाने का मकसद ये कि अब आप लोग को थोड़ा सा सूडो कोड्स का स्ट्रक्चर का आइडिया क्लियर होना चाहिए। आई नो आप लोग के स्कूल के टीचर्स ने पता नहीं क्या क्या करवाया होगा आप लोग को, लेकिन आई डोंट बॉदर अबाउट दैट। जो मैं करवा रहा हूं आप लोग को ये याद रखना है, ठीक है? बाकी सब क्या करना है, भूल जाना है। तो whenever you are writing pseudocodes class, follow my instructions, follow my rules. सबसे पहले आपने क्लास क्या किया, 3 नंबर्स आप लोगों ने डिक्लेयर करवा दिए, ठीक है? दैट नंबर्स कैन बी, हम लोग इंटीजर ले लेते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं या होल नंबर्स होते हैं? जल्दी से लिख के बताएं मुझे मैक चैट के ऊपर, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं या फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं? ठीक है, वी गॉट आंसर्स। सो मैंने सबसे पहले क्लास क्या किया, डिक्लेयर num1 कॉमा num2 कॉमा num3। मैंने 3 नंबर डिक्लेयर करे और मैंने तीनों की डेटा टाइप बता दी, दैट विल बी इंटीजर। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यूजर को क्लास एक मैसेज प्रिंट करवाया, द स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रिंटिंग इज कॉल्ड आउटपुट। बेटा मैंने यूजर को एक मैसेज प्रिंट करवाया, दैट मैसेज वाज प्लीज एंटर थ्री नंबर्स। क्लास सम भी तो लेना एक वेरिएबल सम, ठीक है? तो क्लास इस मैसेज को हम लोग क्या कहते हैं, इस मैसेज को हम लोग कहते हैं क्लास प्रॉम्प्ट। क्या कहते हैं, वी कॉल दिस मैसेज एज प्रॉम्प्ट। फर्दर अब मैंने क्या किया, मुझे इनपुट लेना है। अब यूजर को मुझे एंटर करने क्लास नंबर, तो कोई भी नंबर एंटर कर दे यूजर, तो मैंने इनपुट ले लिया, क्लास इनपुट num1 कॉमा num2 कॉमा num3। तो क्लास अगर आप लोगों को यूजर से इनपुट लेना है क्लास, तो द स्टेटमेंट इज इनपुट। अब यूजर क्लास जो भी पहला नंबर डालेगा, उसकी मर्जी जो भी डाले, दैट विल बी स्टोर्ड इन बेटा num1। अब यूजर जो भी नंबर डालेगा दूसरा, दैट विल बी स्टोर्ड इन num2। अब यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा, दैट विल बी स्टोर्ड इन num3। मुझे कोई बच्चा इस प्रॉम्प्ट का, इस प्रॉम्प्ट जो ये प्रॉम्प्ट है आपके पास, इसकी डेटा टाइप बताएं आप लोग, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दिस प्रॉम्प्ट? ईसा ने क्लास हमें जवाब दे दिया, राइट जवाब दिया बिल्कुल। एनीवन एल्स? तो क्लास मूसा ने भी हमें जवाब दे दिया कि सर दिस इज एक्चुअली स्ट्रिंग बिकॉज यू कैन सी डबल इन्वर्टेड कॉमास। So whatever the thing is enclosed in double inverted commas, that is counted in as string. अब मैंने तीनों नंबर यूजर से एंटर करवा लिया। क्लास आप सबको सम का फॉर्मूला पता है, मैंने बोला सम is equal to, we use arrow for equal to num1 comma, not comma, sorry,
प्लस num2 प्लस num3। तो यूजर क्लास जो भी नंबर एंटर करेगा, मैंने उसको क्या किया, सम अप किया और मैंने स्टोर करवा दिया उसको किसके अंदर, क्लास इन सम। मैंने उसको सम के अंदर क्लास क्या करवा दिया, स्टोर करवा दिया। अब मुझे ये सम डिस्प्ले करवाना है, तो फॉर डिस्प्लेइंग मैंने यहां पे बोला आउटपुट सम इज इक्वल टू कॉमा सम। तो क्या होगा, पहले आपके पास ये मैसेज लिखा हुआ आएगा, दिस इज द मैसेज, दिस इज द मैसेज, एंड दिस विल बी द, ये क्या होगी आपके पास, दिस विल बी द वैल्यू, एंड वी आर डन। अब क्लास कोई भी चीज अनक्लियर है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, यू मे आस्क। आप लोग अभी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। अभी जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जहनों में चल रहा होगा कि सर प्रिंट यूज कर लें, सर इनपुट की जगह रीड यूज कर लें, सर एरो की जगह इज इक्वल टू यूज कर लें, सर जरूरी है नंबर नाम रखूं, मैं नंबर 1 कर दूं, नंबर 2 कर दूं। सर जो जो आप लोग के जहनों में सवाल चल रहे हैं, प्लीज आस्क, पूछ लें, अभी क्लियर कर लें, ताकि बाद में आप लोगों को क्लास कंफ्यूजन ना हो, बाद में आप लोग के डाउट्स क्लियर रहें। कोई भी चीज डाउट कर रही है, कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम कर रही है, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हैं, आई विल रिपीट द होल स्टफ अगेन। और अगर आप लोग को क्लास क्लियर है तो राइट डाउन ऑन मैक चैट क्लियर, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। Isra is asking, sir, why do we use output instead of print? Isra, beta, we have used output over here because 2019 आपके कैम्ब्रिज ने एक टीचर्स गाइड भेजी और उसके अंदर वो सूडो कोड गाइड थी, और उसके अंदर उसने मेंशन किया कि भाई जब भी आपको डिस्प्ले करवाना हो सूडो कोड्स के अंदर, यूज आउटपुट। तो अगर आप पुराने पेपर्स देखेंगे थोड़े, तो आपको कहीं पे प्रिंट नजर आता है, आप थोड़े लेटेस्ट पेपर उठाएंगे आपको आउटपुट नजर आएगा, लेकिन ये मिक्स एंड मैच चलता रहता है। लेकिन अगर आपने प्रिंट भी यूज कर लिया, सो दैट डजंट काउंट डिफरेंस इन ओ लेवल्स। आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप प्रिंट की स्टेटमेंट यूज कर रही हैं। ठीक है बेटा, मैं आउटपुट ही यूज करवाता हूं बिकॉज ए लेवल में तो कंपलसरी आउटपुट यूज करना, सो दैट्स व्हाई। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रिंट भी यूज कर लेती तो कोई इशू नहीं होता। ठीक है, ओके फाइन। मूसा, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? अयान, आई थिंक अयान आपका नाम चेंज है, यू आर रेयान। अच्छा जी, ये सवाल अच्छा आया। अब मूसा इज आस्किंग कि सर अगर मैं पेपर में जो खूबसूरत सा एरो है इसकी जगह में इज इक्वल टू यूज कर लूं, मूसा ओ लेवल्स के अंदर एग्जामिनर छोड़ देता है, नंबर दे देगा। ठीक है, अगर आपने इज इक्वल टू यूज कर लिया, आपने एरो यूज नहीं किया, तो एग्जामिनर लीनियंट है, छोड़ देता है, नंबर नहीं काटता। लेकिन देखो एक चीज है ना, एक पैटर्न है सूडो कोड में, इज इक्वल टू असाइनमेंट इज एक्चुअली दिस एरो। तो कोशिश करो कि एरो यूज कर लो। लेकिन अगर नहीं याद रहे, नहीं यूज कर पाए, और आपने इज इक्वल टू यूज कर लिया, तो अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नंबर पूरे देगा एग्जामिनर। इस बात के ऊपर नंबर नहीं काटता वो। ठीक है बेटा, नो भाई, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आज सिर्फ बच्चों वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं, अगली क्लास के अंदर मैं प्रॉपर क्वेश्चंस के ऊपर आऊंगा आप लोग के। ठीक है, लेकिन अभी भी जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, दिस क्वेश्चन वाज, ये क्वेश्चन 6 दफा लास्ट 22 ईयर्स के अंदर ये सवाल 6 दफा एग्जामिनर पूछ चुका है। ठीक है, तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन।
ओके, वी हैव वन मोर क्वेश्चन। मैंने सवाल दिया क्लास के आपको 3 नंबर इनपुट करवाने। कितने करवाने? वी नीड टू इनपुट 3 नंबर्स एंड we need to display the highest number input. Let's assume कि अगर यूजर ने एंटर किया 396, तो हमें क्या डिस्प्ले करवाना है? we need to display 9. अगर यूजर ने एंटर किया लेट्स से 312, तो हमें क्या डिस्प्ले करवाना है? हमें 3 डिस्प्ले करवाना है. So we need to display the highest number that is input by the user. So करते हैं, जरा कोड करते हैं इसको, यहां पे जरा देखते हैं. अगेन सबसे पहले क्या किया मैंने? डिक्लेयर किया. अच्छा चले अभी इस वाले क्वेश्चन में कर पाऊंगा. डिक्लेयर num1 num2 num3 and I keep the data type as integer. मैंने यूजर से नंबर ले लिया क्लास, पहले प्रॉम्प्ट करवा दिया मैंने. और मैंने 3 नंबर इनपुट ले लिए. अब क्लास बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मुझे जरा बताएं इस कोड में अभी मैंने जो 3 लाइनें लिखी हैं, कोई चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व करी कि कुछ वियर्ड हो, कुछ अलग हो? आज तक कभी आप लोगों ने वो चीज ना करी हो, आप लोगों ने वो चीज अभी ऑब्जर्व करी हो? कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी चीज क्लास? आई विल बी रियली हैप्पी. आप लोग बताएं जरा मुझे, अगर आप लोगों ने कोई ऐसी चीज ऑब्जर्व करी हो कि आप लोगों ने जर्नली जो स्कूल के अंदर सूडो कोड अगर करे हो, आप लोगों ने अगर करे हो, अगर नहीं करे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने स्कूल में वो चीज करी हो और आप लोग बोलोगे सर हमें ये चीज तो हमने ऑब्जर्व नहीं करी आज तक, एनीथिंग? ओके, लेट मी टेल यू. लेट्स सी, ये जो आपके पास वर्ड्स होते हैं ना, लाइक डिक्लेयर, आउटपुट, इनपुट, इन वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज कीवर्ड्स. ये कीवर्ड्स हैं. एंड कीवर्ड्स हमेशा क्या होंगे? ऑलवेज इन अपर केस. ठीक है, तो आप लोगों को क्लास क्या करना है, जब भी आप लोग कोई भी कीवर्ड लिखें, द कीवर्ड शुड बी ऑलवेज इन अपर केस. छोटी छोटी सी चीजें क्लास, ये चीजें याद रखेंगे तो आप लोग के लिए अच्छा है. प्लस अलाइनमेंट भी चेक करें जरा. मैं कैसे अलाइनमेंट, एक लाइन के अंदर आ रहा हूँ, एक लाइन के अंदर ट्रेवल कर रहा हूँ, तो अलाइनमेंट वगैरह भी फॉलो किया करो. ठीक है ना? लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते. अब 3 नंबर आ गए मेरे पास. अब इन तीनों नंबरों में से num1 num2 num3 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो मैंने चेक किया क्लास, इफ मैंने बोला अगर नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 एंड नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 3. अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, पहली कंडीशन. अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 3 से, दूसरी कंडीशन. तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ क्लास? नंबर 1 हुआ सबसे बड़ा नंबर. तो वी आर गोइंग टू प्रिंट दैट नंबर. तो मैंने बोला देन आउटपुट नंबर. ठीक है, अगर अगर क्लास पहली कंडीशन क्या थी? अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, अगर नंबर 1 नंबर 3 से भी बड़ा है, सो कौन सा नंबर प्रिंट कर दो? प्रिंट कर दो नंबर 1. अब मैं दूसरी कंडीशन चेक करूंगा. नाउ आई एम गोइंग टू चेक नंबर 2. मैंने चेक किया क्लास, एल्स इफ
else if number 2 is greater than number 1 and number 2 is greater than number 3। तो क्लास अगर आपका नंबर 2 बड़ा है नंबर 1 से और अगर आपका नंबर 2 बड़ा है क्लास नंबर 3 से, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ आपके पास? देन आउटपुट num2, देन आउटपुट num2। अगर आपका नंबर 1 भी नहीं बढ़ा, नंबर 2 भी नहीं बढ़ा, तो क्लास सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? सबसे बड़ा नंबर होगा क्लास फिर आपके पास नंबर 3। तो अब आपको कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्टली बोल दिया एल्स अगर नंबर 1 भी नहीं बढ़ा, नंबर 2 भी नहीं बढ़ा, तो आउटपुट कर दो सिंपली num3 और आपने यहीं पे क्लास क्या करवा दिया? एंड if and we are class done and class we are done with this question। ठीक है, तो आप लोगों ने क्लास जरा चेक करा, कीवर्ड था मेरे पास इफ, कैपिटल रखा, फिर देन देखें अलाइनमेंट के अंदर आया है, कंडीशन आ गई, उसके बाद हमारे पास फिर क्या हुआ? देन यहां पर आया, फिर एल्स इफ, फिर सेकंड कंडीशन और फिर देन इसके अंदर आया, फिर एल्स, फिर जो भी हमें परफॉर्म करना था, और फिर मैंने इसी के साथ अलाइनमेंट के अंदर देखें एंड इफ कर दिया। ऑल्दो थोड़ा सा मिसअलाइंड हो गया, लेकिन फिर भी अलाइनमेंट का मैं ख्याल रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अलाइनमेंट हम लोग फॉलो करें। बिल्कुल, एंड जो है आपका कैपिटल होगा, बिल्कुल एंड इज अ कीवर्ड, इट विल बी कैपिटल बेटा, इज अ बेटा, परफेक्ट। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चले अब एक और क्वेश्चन करते हैं जरा यहाँ पे, लेट्स परफॉर्म द लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, लेट्स सी। अब मैंने क्लास एक क्वेश्चन करवाया आप लोगों को, द क्वेश्चन वाज input a number from user and display that the number is positive or नेगेटिव। सो आपको एक नंबर लेना है क्लास अब यूजर से और आपको बताना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इतना सिंपल सा सवाल है। अब कैसे करेंगे? तो क्लास सबसे पहले यूजर से नंबर लेते हैं। मैंने क्या एक नंबर डिक्लेयर डिक्लेयर num, I keep the data type as integer। आफ्टर दिस मैंने यहाँ पे यूजर से मांगा आउटपुट एंटर अ नंबर और मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया क्लास इनपुट नम। अब मुझे क्लास ये चेक करना है कि ईदर दैट नंबर इज पॉजिटिव और दिस नंबर इज नेगेटिव। कैसे चेक करूंगा? तो मैंने बोला भाई मैंने तो मैथ्स पढ़ी हुई है, मैंने तो मैथ्स पढ़ी है, मुझे बेसिक लॉजिक तो पता ही है। तो मैंने यहाँ पे लॉजिक लगाई अपनी एंड दैट लॉजिक वाज इफ num is less than 0 then output नेगेटिव।
और अगर क्लास ये नंबर नेगेटिव नहीं है तो क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, नंबर जाहिर सी बात है फिर क्या होगा, पॉजिटिव, तो एल्स आउटपुट पॉजिटिव। और मैंने यहीं पे क्लास क्या कर दिया, एंड इफ, डन। ठीक है, सो यू हैव सीन क्लास, हम लोगों ने यहाँ पे एक और क्वेश्चन परफॉर्म किया और हम लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी है अबाउट इफ देन एल्स। ठीक है, अभी हम लोग क्लास फर्दर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर, एंड दोस क्वेश्चन विल बी ऑफ इफ देन एल्स। फिर हम लोग फॉर लूप के ऊपर भी आएंगे, हम लोग व्हाइल के ऊपर भी आएंगे, हम लोग रिपीट एंटिल के ऊपर भी आएंगे। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी स्टेटमेंट। ठीक है, और अगेन अभी थोड़ा सा हल्के हल्के हम लोगों ने इसको स्टार्ट लिया है, वी विल बी मूविंग अहेड इन आवर नेक्स्ट क्लास। इसको आगे हम फर्दर अगली क्लास में लेके जाएंगे और फर्दर हम लोग इस चीजों को देखेंगे, क्लियर अप करेंगे कि किस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, क्या होगा इफ देन एल्स, फॉर लूप के अंदर क्या करना है, हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेस टेबल एंड ऑल दैट। सो आज हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में इसको आगे हम लोग फर्दर कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, चलें, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।